Welcome to our very special show on the IPL 2023. This is all about predictions. And the good news from our side is we've scored a hat trick. Yes. The first prediction was that Gujarat Titans will win. They did. Second one was Punjab Kings will win. They did. And the third one also, we got it just bang on that Lucknow Super Giants will win. So it's been a hat trick from us. So stay tuned to us and we'll keep you updated on the next matches which are coming up. So let's move on to our next match, which is between Rajasthan Royals versus the Sunrisers Hyderabad. And please remember, this show is about predictive analysis. We give you certain reasons why something will happen. It's not a magic box that we have, but it goes on certain situations, ground conditions, team conditions, and of course the history of the team which has been performing, and obviously all the new changes that have happened in this season. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो अगला मैच है वो राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच. ये मैच खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में. सो होम कंडीशंस की जहां तक बात है, ऑब्वियसली इट विल हेल्प SRH, बट दिस टाइम I would want to stick my neck out and say that Rajasthan Royals has best chance of winning. उसके पीछे कुछ कारण है. Although it is an away match for Rajasthan Royals and they will not be playing at home, and it is also the first match of the season. But I still believe that where Rajasthan Royals is concerned, they were the runners-up in the last season, and they lost to Gujarat Titans. They did superbly well. Again, they have the nucleus of a very good side. तो मैं आपको कुछ पॉइंटर्स के बारे में बताता हूँ. कप्तान है संजू सैमसन. बहुत कुछ सुना है आप लोगों ने संजू सैमसन के बारे में, और संजू एक ऐसा प्लेयर है जो IPL में उन्होंने काफ़ी कमाल दिखाया, पर पता नहीं क्यों किस कारणवश टीम इंडिया में उनको ढंग से मौके नहीं मिले. कुछ प्लेयर्स के साथ जो है टीम मैनेजमेंट परसिस्ट करती है, कुछ लोगों को ज़्यादा मौके नहीं मिलते. होपफुली ये एक ऐसा सीज़न होगा जिसके बाद संजू सैमसन को देखा जाए ODI वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा. न्यू साइनिंग्स में जेसन होल्डर, एडम ज़ैम्पा, जो रूट और कई और प्लेयर्स हैं, लेकिन ये खास तौर से एक जो जिसे कहते हैं जो न्यूक्लियस है उस साइड का, वो उनमें ये नाम शामिल है. टॉप प्लेयर्स की बात की जाए तो उसमें जॉस बटलर, कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था पिछली बार. ही वाज इन टेरिफिक फॉर्म. ही accumulated 863 runs from 17 encounters at a strike rate of almost 150. He had then hit 4 centuries, 4 शतक लगाए थे और 4 half centuries लगाए थे, with 116 being his highest individual score. Joss Butler was on fire last season. They would hope that some of that fire continues this season too. Sanju also had a pretty decent season, and then we move on to Shimron Hetmyer and Riyan Parag. Shimron Hetmyer को देख के मैं बहुत बड़ा फैन हूँ विव रिचर्ड्स का, और किंग विव की याद दिलाती है. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किंग विव जैसा प्लेयर है कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ बात है हेटमायर में, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो पावर ऑफ हिटिंग, जिस हिसाब से वो 6s and 4s एट विल मार सकते हैं, तो एक उस खिलाड़ी में एक एक्स फैक्टर है. ये देखना पड़ेगा कि इस बार शिमरॉन हेटमायर चल पाएंगे या नहीं. रियान पराग एक बढ़िया यूटिलिटी प्लेयर है और असम के लिए उन्होंने काफ़ी खेला है रणजी ट्रॉफी के डोमेस्टिक सर्किट में. अब और ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए हैं, और उनसे ये ज़रूर उम्मीद रखेंगे राजस्थान रॉयल्स कि वो इस बार अपना गेम और आगे बढ़ाएं. और खुद ही रियान पराग ने कहा है दैट one of my ambitions is to hit 4 6s in 1 over. Let's see if that ambition is realized in this IPL. Then in the spin department, 2 brilliant names, Ravi Chandran Ashwin and Yuzi Chahal. Yuzi Chahal तो खुद भी मशहूर है अपने चैनल के लिए, अपनी जैसे वो कॉमेडी करते हैं, एक लोगों को हंसाने की उनमें काबिलियत है, एक अलग स्टाइल है दूसरे प्लेयर्स का इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन टीम को उम्मीद होगी कि वो फील्ड पे बढ़िया काम करें, ना कि कॉमेडी दिखाएं. और once we talk about this combination, they've formed a pretty dominant pair in the previous year, and they've accounted for 39 wickets combined from 17 matches. और 39 विकेट लिए थे 17 मैचेस में दोनों ने कंबाइन करके, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है. उनके जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं श्रीलंका ग्रेट कुमार संगाकारा हैं, असिस्टेंट कोच ट्रेवर पेनी है,
बैटिंग कोच अमोल मजूमदार, जो मुंबई के लिए बहुत बरसों तक खेलते रहे, एक बहुत ही बेहतरीन ओपनर रहे। और स्पिन बॉलिंग कोच में सायराज बाहुटुले अपने टाइम के अच्छे लेगी थे। फास्ट बॉलिंग कोच में एक बेहतरीन नाम लसित मालिंगा, जो डेथ ओवर्स में शायद ही उनसे बेहतर कोई और कर पाए। क्या फैंटास्टिक उनका रिकॉर्ड है। और फील्डिंग कोच है दिशांत याग्निक। इस पिच कंडीशंस के बारे में भी मैं आपको बता दूं। पिच कंडीशंस जहां तक हम लोगों के पास जो डिटेल्स आ रहे हैं, इट में फेवर द बॉलर्स, द स्पिनर्स विल प्ले अ मेजर रोल व्हाइल बॉलिंग ऑन दिस ट्रैक। तो अब जैसे ही आप स्पिनिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो अब रवि अश्विन और युजी चहल जहां है, तो उस साइड को जाहिर है कि ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। एसआरएच की तरफ जाते हैं। एसआरएच का बहुत ही खराब सीजन रहा पिछले साल आईपीएल सीजन। 14 गेम्स में दे फिनिश्ड, दे वन ओनली 6 आउट ऑफ 14 गेम्स। 14 गेम्स खेले जिसमें से सिर्फ 6 वो जीत पाए, और दे 8वें थे वो पॉइंट्स टेबल पे। इस बार नए कप्तान हैं एडन मार्क्रम, लेकिन एडन मार्क्रम पहले मैच में नहीं रहेंगे क्योंकि वो अभी अवेलेबल नहीं है। उनकी जगह भुवनेश्वर कुमार शायद कप्तान हो इस पहले मैच में। न्यू साइनिंग्स में हैरी ब्रुक, करीब 13.25 करोड़ उन पे लगाए गए थे। हैरी ब्रुक टेस्ट मैचेस में भी बहुत बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया बल्ले से। मयंक अग्रवाल, हमारे फॉर्मर टेस्ट ओपनर, जो अपनी जगह खोज उन्होंने दिया है इंडियन टीम में, लेकिन एक बेहतरीन टेक्नीशियन है, एक बढ़िया प्लेयर हैं, उन पे नजरें टिकी रहेंगी। क्लासन, आदिल रशीद इंग्लैंड के, फिर बाकी नामों में कई और हैं, लेकिन मैं अब आपको ले चलता हूं उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी तरफ। एडन मार्क्रम सबसे पहले उनका नाम आता है, अभी ग्रेट फॉर्म में है। एसएटी 20 साउथ अफ्रीका के T20 में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और T20 में भी साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए एक बड़ा टोटल वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने चेस डाउन किया। काफ़ी उनका नाम हो गया है साउथ अफ्रीका में। हैरी ब्रुक अपनी शतकों के लिए मशहूर हैं, so he's another player to look out for, and he has this ability to do some huge hits even in test cricket, so they will hope that it happens in IPL too. उमरान मलिक, फास्ट एक्साइटिंग, 150 क्लिक्स के आसपास की बॉलिंग वो कर सकते हैं। उमरान मलिक के साथ एक अजीब सी कंट्रोवर्सी रही है इंडियन टीम में कि कब उनको खिलाया जाए, क्या वो एक्सपीरियंस्ड है या नहीं। खैर मैं उस पर नहीं आता। ये एक उनके लिए बेहतरीन मौका है दिखाने के लिए कि जैसे अभी मार्क वुड ने पिछले मैच में 5 विकेट लिए, उमरान मलिक को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो कुछ ऐसा दासू परफॉर्मेंस दिखाएं जिससे उनके आगे का करियर और बढ़िया हो। हेड कोच हैं द ग्रेट, द वन एंड ओनली ब्रायन लारा। असिस्टेंट कोच है साइमन हेलमट। हेमंत बदानी है बैटिंग कोच, और मुथैया मुरलीधरन है स्पिनिंग कोच। तो जहां तक आप इस पूरी समीक्षा को देखेंगे, ऑन पेपर जहां तक मैं समझता हूँ, राजस्थान रॉयल्स आर अ स्ट्रॉन्गर टीम। If the pitch conditions is going to favor spin, then they have Rajasthan Royals will have Ashwin and they have Chahal, and it's a very fine batting order that they have with some very big names, very powerful names. And the first 10 overs is what the spectators should watch out for. That is when a lot of the fun will happen, and not so much what will happen in the death overs. So a large part of the kick is now happening in the first 10 overs. And another point I want to emphasize on, that in this IPL there is this diktat that no matter what happens, each batsman whenever they come in, जैसे ही कोई नया बल्लेबाज आता है वो मारना ही चालू करता है। वो ये नहीं सोचता है, और ऑब्वियसली उनको ऑर्डर्स दिए गए हैं, आप परवाह मत करो पीछे क्या होने वाला है, आप अपना गेम करो और आप रन स्कोर करो। So all the best to both the teams, but I will still say Rajasthan Royals should win this match. Thanks for watching. We'll be back with more.